Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. So we had posted a video on Lemon Tree on 22nd of January 2022, where we had mentioned that Lemon Tree can touch a target of 58 rupees provided it gives a breakout of this symmetrical triangle pattern. So today it has given a breakout of the symmetrical triangle pattern and has closed at a price of 51.90 after making a high of 54.75. So now what can happen in this stock? For further strength in this stock, it has to close above this particular line maybe for 3 to 4 days in order to gain further strength. The target will continue to be rupees 58 because we had used the width of the symmetrical triangle pattern as the basis for identifying the possible target. So if anyone has purchased this stock maybe at the lowest price here, he or she can revise the stop loss after discussing the correct stop loss with his or her financial advisor. So it is also important to note that this stock had given a breakdown of the symmetrical triangle pattern on 24th of January, but it went back inside the triangle on 28th of January itself. That is why it is very important for anyone who is observing or who is doing technical analysis to see that the pattern has been confirmed after continuous closings or not. So now what will happen? Just like on the downside, now you will have to wait for the confirmation on the upside as well. It is not like that if Lemon Tree has closed above this particular trend line today, it cannot come back inside this triangle maybe within a day or two. So you will have to see that Lemon Tree continues to close above this particular line maybe for 3 to 4 closings before we can see the target of rupees 58. So if anyone who is holding this stock can either revise his or a stop loss and wait for the target of 58, or if he or she has purchased the stock at a very low price, he can, after discussion with his or a financial advisor, can either book partial profits or revise stop losses as we have already mentioned. So this is the correct approach of holding your stocks. If you're a long-term investor, then there is no problem. But if you're a very short-term investor, then you should immediately discuss with his or with your financial advisor as to where your stop loss should be or whether you should book the profits or not, because the target will continue to be 58 rupees, but a lot of people are not able to handle the kind of volatility that we are seeing on a day-to-day basis nowadays. So you will have to be prepared for both upside and downside in all of your stocks that you are holding. So if you have any queries, concerns or suggestions, you can post them in the comment section and we will reply to them ASAP. Now we will be moving on to the Hindi version of the video. Kindly stay tuned. हेलो मेंबर्स, मैं अमन बोल रहा हूँ अपमूव स्टॉक से। सो हमने 22 जनवरी 2022 को लेमन ट्री के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पे हमने ये डिटरमिन किया था कि लेमन ट्री ऊपर की तरफ 58 रुपए तक जा सकता है अगर वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है। तो उसने आज इसका ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वो 54.75 रुपए तक भी गया, पर उसने जो क्लोजिंग दिया वो है 51.90 रुपए की। तो इस स्टॉक ने जैसे इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़ा, इससे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, ऊपर भी गया बट क्लोजिंग ठीक है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छी, आप देख सकते हैं वॉल्यूम बार कितना बड़ा है, तो इसमें एकदम से इंटरेस्ट आए। बट एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि यह सारे टूरिज्म और होटल स्टॉक्स ऊपर थे, तो लेमन ट्री ने भी इसलिए स्ट्रेंथ दिखाई है। तो अब क्या हो सकता है, अगर किसी के पास भी ये स्टॉक है तो अब उनके लिए ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस लाइन के नीचे लेमन ट्री को क्लोज नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी को हमने ये एज्यूम किया था कि शायद जो ब्रेकआउट है वो 50 रुपए पे आएगा। आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट आज 50 रुपए 10 पैसे पे ही दिया है। उस टाइम पे हमें नहीं पता था ब्रेकआउट कहां पर आएगा, हमने सिर्फ एक एजम्पशन की थी। तो इसने 50 रुपए 10 पैसे पे आज ब्रेकआउट दिया है। टारगेट इसका 58 रुपए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की विड्थ यूज की थी और अभी भी हम उसी को यूज कर रहे हैं टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर किसी ने स्टॉक को बहुत ही कम प्राइस पे लिया हुआ है तो उनको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए अपने कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके, क्योंकि अभी बहुत वॉलेटिलिटी, स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो अपने जो प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं उनको नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट से टच में रहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर की तरफ रिवाइज कर लीजिए। इसमें एक बात देखने वाली ये भी है कि जब हमने 22 जनवरी को वीडियो तैयार किया था तो हमने यहाँ पर कहीं वीडियो तैयार किया था, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया ट्रायंगल पैटर्न का, बट वो होल्ड नहीं हो पाया। और आप देखिए तीसरे दिन स्टॉक वापस इस ट्रायंगल में घुस गया और घुसते ही इसने आज ब्रेकआउट दे दिया। मतलब 3 से 4 दिन के अंदर अंदर
इसने सारी एक्टिविटी कर ली। 4 दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी में ये स्टॉक नीचे जाकर ऊपर आया है और इस लाइन के ऊपर भी इसने बंद कर दिया है। तो अगर किसी के पास ये स्टॉक है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो टारगेट 58 रुपए ही रहेगा अभी के लिए। क्यों? क्योंकि वो विड्थ अभी भी वैलिड रहेगी। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं कि उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इस लाइन का प्लीज आप लोग ध्यान रखें, स्टॉक वापस इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ही रहे तो बेटर रहेगा और वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर स्टॉक में फर्दर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो टारगेट 58 रुपए ही है, सिर्फ एक अपडेट है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, बट अभी इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है इस लाइन के ऊपर, ताकि पैटर्न बिल्कुल कंफर्म हो सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।